میں 14 سال کی تھی جب میرے والدین فوت ہو گئے۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی، اس لیے خالو مجھے زبردستی اپنے گھر لے آئے، جبکہ میرے باپ کا سارا کاروبار میرے چاچو نے سنبھال لیا تھا۔ خالو مجھے بہت پیار کرتے، دن رات میرے آگے پیچھے گھومتے، جبکہ میری خالہ کو یہ سب اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ ہر وقت میرے خالو سے لڑتی رہتی، اور جب میں جوان ہوئی تو میری خالہ مجھ پر شک کرنے لگی تھی۔ وہ ہر وقت مجھ پر اور میرے خالو پر نظر جمائے رکھتی تھی، جیسے انہیں کسی چیز کا ڈر ہو۔ انہی دنوں اچانک سے میرے خالو فوت ہو گئے۔ اب ہر روز میرے خالو میرے خواب میں آتے اور کہتے، جلدی سے میری قبر کھدواؤ اور میرے پاس تمہاری ایک چیز ہے۔ جب یہ خواب روز آنے لگا تو میں نے خالہ کو بتا دیا، مگر ان کا رنگ فک ہو گیا اور انہوں نے مجھے ایسا کرنے سے روک دیا۔ مجھے اپنی خالہ پر شک ہو گیا تھا۔ میں نے اسی روز جا کر خالو کی قبر کھدوائی تو میرے جسم سے جان نکل گئی، کیونکہ وہاں تو میرا نام انم ہے اور میری امی کا رشتہ ایک بہت بڑے آدمی سے ہوا تھا۔ میرا باپ بہت زیادہ امیر تھا۔ میں امی کی شادی کے 1 سال بعد ہی پیدا ہو گئی تھی۔ میرے پیدا ہونے پر میرے باپ نے ایسی خوشیاں منائی تھی کہ جیسے بیٹے کے پیدا ہونے پر خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ میری ایک خالہ بھی تھی جن کا نام ماریا تھا۔ وہ میری امی سے 2 سال چھوٹی تھی۔ ان کی بھی شادی ہو چکی تھی۔ ان کے ہاں بھی ایک بیٹی تھی جس کا نام نرمین تھا۔ وہ میری ہم عمر تھی اور ہم دونوں میں بہت اچھی دوستی تھی۔ ہم دونوں ایک ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ جب میں 14 سال کی ہوئی تو میرے والد صاحب باہر کے ملک چلے گئے، کیونکہ انہوں نے وہاں پر کوئی کاروبار شروع کیا تھا۔ اب تو میری ماں کے ٹھاٹ اور بھی بڑھ گئے تھے۔ پھر 3 ماہ بعد میرے والد صاحب واپس آ رہے تھے۔ اس روز میری طبیعت خراب تھی اور میری ماں اکیلے ہی میرے والد کو ایئرپورٹ سے لینے چلی گئی، لیکن واپسی پر ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ دونوں اس دنیا سے چلے گئے۔ میں 14 سال کی عمر میں یتیم ہو گئی تھی۔ میرے لیے یہ بہت بڑا صدمہ تھا۔ میں بہت روئی تھی۔ میرے خالو زبردستی مجھے اپنے گھر لے آئے تھے۔ اب میں ان کے ساتھ رہنے لگی تھی، جبکہ میرے والد کا کاروبار میرے چاچو نے سنبھال لیا تھا۔ میرے خالو بھی بہت اچھے انسان تھے، جبکہ میری خالہ لالچی عورت تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ تمہارے باپ کا سارا کاروبار تمہارے چاچو نے سنبھالا ہوا ہے، تمہارا سارا خرچہ ہم کرتے ہیں، تمہارے چاچو کو ہمیں بھی کاروبار سے حصہ دینا چاہیے۔ کبھی کبھی میرے چاچو مجھ سے ملنے کے لیے آتے تھے۔ میرے خالو ان کی بہت عزت کرتے تھے، لیکن میری خالہ ان کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتی تھی اور باتوں باتوں میں طنز بھی کر دیا کرتی تھی۔ میرے چاچو نے آج تک کوئی الٹی سیدھی بات بھی نہیں کی تھی۔ وہ جاتے وقت میرے ہاتھ پر اچھی خاصی رقم رکھ کر جاتے تھے۔ ان کا ایک بیٹا بھی تھا جس کا نام حسنین تھا۔ میں اسے بہت زیادہ پسند کرتی تھی۔ وہ میرا کزن تھا۔ ہم شروع سے ہی ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے، وہیں سے ہماری دوستی شروع ہوئی تھی۔ اس کے بعد میں دوسرے اسکول میں جانے لگی، لیکن وہ مجھے بہت اچھا لگتا تھا اور میں دل ہی دل میں سوچتی تھی کہ میرا کزن ہے، میری شادی بھی اسی سے ہو سکتی ہے۔ وہ بھی مجھے ملنے کے لیے آیا کرتا تھا۔ ایک دن چاچو گھر آئے تو انہوں نے میرے خالو کو کہا، کہیں باہر چلتے ہیں، میں نے انم کے بارے میں بہت زیادہ ضروری بات کرنی ہے۔ میرے خالو نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ ان کے ساتھ چلے گئے۔ واپس آئے تو انہوں نے وہی بات خالہ سے کر دی۔ تھوڑی دیر کے بعد خالہ خالو کے لڑنے کی آوازیں آنے لگی۔ ہم نے ان کو اس طرح سے کبھی لڑتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ نہ جانے میرے چاچو نے ایسی کیا بات کر دی تھی۔ اس کے بعد میرے خالو مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتے تھے، لیکن میری خالہ ہمیشہ موضوع بدل دیتی تھی۔ میں ابھی کالج میں پڑھ رہی تھی، میرا آخری سال تھا۔ کچھ دن اس طرح گزر گئے۔ خالہ اور خالو کے آپس کے معاملات کافی کشیدہ ہو گئے تھے۔ خالہ مجھ پر اور خالو پر نظر رکھنے لگی تھی، جیسے انہیں کسی بات کا ڈر ہو۔ نہ جانے کیا بات تھی، لیکن اتنا تو مجھے شک پڑ گیا تھا کہ اس بات کا تعلق مجھ سے یا میرے چاچو سے ضرور تھا۔ ایک ہفتہ گزرا تھا کہ اچانک میرے خالو بیمار ہو گئے اور 2 دن بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ مجھے تو ایسا لگا میرا باپ پھر سے مر گیا ہے، کیونکہ خالو نے ہمیشہ باپ کا سچا پیار دیا تھا۔ نرمین کی حالت بھی بہت بری تھی۔ ہمارے گھر کا تو ایک ہی مرد تھا، وہ بھی اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ میری خالہ اب گھر سے باہر رہنے لگی تھی۔ وہ اچانک کہیں چلی جاتی، کافی دیر تک غائب رہتی۔ بالآخر ان کی اپنی بیٹی نے پوچھ لیا تو وہ رو کر کہنے لگی، کہاں جاؤں گی، بس اپنے شوہر کی قبر پر جا کر بیٹھ جاتی ہوں، وہاں جا کر سکون ملتا ہے۔ یہ سن کر تو ہماری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، پر ہم نے منع کیا
کہ آپ ना जाया करें, अगर वो ऐसे हिम्मत हार जाएंगी तो फिर हमारा क्या होगा। उन्होंने कहा, अब नहीं जाया करूंगी। अभी मेरे खालू को इस दुनिया से गए हुए 10-15 दिन हुए थे जब एक रोज मेरे चाचू आए और उन्होंने एक अजीब सी बात कर दी। उनका कहना था कि दरअसल मैं ये बात पहले भी कर रहा था, हमारी आपस में बात चल रही थी, मैं आपकी बेटी नरमीन के लिए अपने बेटे का रिश्ता करना चाहता हूँ। ये सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने सोचा कि वो मेरी खाला की बेटी के लिए कैसे आ गए, ये बात चाचू के दिमाग में कैसे आई, क्या उनकी नजर में मैं नहीं आई। मगर उस वक्त मुझे बड़ी हैरानगी हुई जब मेरी खाला ने फौरन रिश्ते के लिए हाँ कर दी, क्योंकि जो जायदाद और कारोबार मेरे बाप का था अब वो मेरे चाचू का ही था। यानी मेरे चाचू इस वक्त बहुत ज्यादा अमीर थे। वो लोग उस बंगले में रहते थे जहाँ मैं बाबा और अम्मी के साथ रहा करती थी, जो इस शहर का सबसे बड़ा और खूबसूरत घर था। मेरी खाला ने हाँ कर दी और कहा कि नरमीन के पेपर खत्म होने वाले हैं, फिर उसके बाद शादी कर देंगे। मेरे चाचू ने भी हामी भर ली। उनका कहना था कि हसनैन भी इस रिश्ते से बहुत खुश है। मैं हैरान थी कि ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि मैं हसनैन से शादी करना चाहती थी। चाचू ने मेरे बारे में नहीं सोचा, उन्होंने अभी भी मुझसे कोई बात नहीं की, वो मेरी राय तक नहीं पूछ रहे थे। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं हसनैन से पूछूं, लेकिन मैं किस हक से ये बात करती। मैंने रोना शुरू कर दिया। नरमीन इस रिश्ते से बहुत खुश थी, लेकिन उसने ऐसा कभी नहीं सोचा था। मेरे चाचू अब हमारे घर आते तो मुझे नफरत की निगाह से देखते। मैं बड़ी हैरान हुई। पहले तो वो सीधा मेरे कमरे में आते थे, मेरे साथ बहुत बातें करते थे। मुझे अच्छी तरह याद है उन्होंने एक बार मुझे ये भी कहा था कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं हसनैन की शादी तुम्हारे साथ करूं। तभी तो मेरे दिल में हसनैन के लिए मोहब्बत पैदा हुई थी और मैं उसे शोहर के रूप में सोचने लगी थी। मगर अब अचानक से मेरे चाचू को क्या हो गया था, जिंदगी से मुझे नफरत हो गई थी। मुझे ऐसा लगता था मुझे सब कुछ नहीं मिलना, मेरी किस्मत में कोई अच्छी चीज लिखी ही नहीं थी। माँ बाप इस दुनिया से चले गए, फिर मेरा घर किसी और का हो गया। मेरे दोस्त जैसे खालू को भी अल्लाह ताला ने मुझसे दूर कर दिया और अब जिस इंसान से मोहब्बत करती थी वो भी मुझसे दूर किया जा रहा था। पता नहीं ये सब कुछ क्या हो रहा था। ऐसा लगता था किस्मत और हालात मिलकर मेरे खिलाफ कोई प्लान बना रहे हैं और कोई भी नहीं चाहता कि मैं कभी खुश रहूं। शादी की सारी तैयारियां चाचू ने खुद ही करनी थी। उन्होंने कहा कि हम सारा खर्चा खुद उठाएंगे, यहाँ तक कि मंगनी की रस्म भी हमारे घर पर ही होगी। आप लोग बेशक एक दिन पहले हमारे घर आ जाना, आप लोगों के कपड़े जूते भी हम लोग ही बनाएंगे। एक दिन मोहल्ले से कोई औरत घर आई हुई थी। जब मेरी खाला ने उससे बात की और कहा मेरी बेटी तो बहुत ज्यादा नसीबों वाली है, अल्लाह ने इसके नसीब खोल दिए हैं, बहुत ही अमीर लोगों में मेरी नरमीन की शादी होने वाली है। मैं हैरान थी कि पहले तो मेरी खाला मेरे चाचू को बहुत बुरा समझती थी। वो घर आते थे तो उनको पानी तक नहीं पूछती थी और अब कह रही थी कि बहुत अच्छे लोग हैं। काश मैं अपने चाचू के घर में रहती, फिर शायद मैं उनकी नजर में आ जाती और वो मेरे बारे में सोचते। खैर मंगनी से एक दिन पहले हम उनके घर चले गए। वो हम सबको बाजार लेकर गए। उन्होंने कहा कि जो भी कपड़े आपको पसंद हैं आप अपनी मर्जी से अलग कर लें। नरमीन ने सबसे ज्यादा महंगे जोड़े पर हाथ रखा था। उसकी मंगनी थी, लेकिन ऐसे लग रहा था कि वो दुल्हन बन रही है, उसकी शादी होने वाली है। मेरी खाला के शोहर को इस दुनिया से गए हुए अभी वक्त ही कितना हुआ था, लेकिन उन्होंने एक शोख रंग का जोड़ा लिया। जब मेरी बारी आई तो चाचू ने एक सादा सा जोड़ा उठाकर मुझे पकड़ा दिया और कहा, ये लो तुम्हारा काम भी हो गया। मुझे वो जोड़ा बिल्कुल भी पसंद नहीं था। पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा था। सब घर वाले मुझसे ऐसा रवैया क्यों कर रहे थे। उस रात में बहुत रोई थी। जब सोई तो मैंने ख्वाब देखा कि मेरे खालू मेरे कमरे में आए हैं। वो मेरे सर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, तुम जाकर मेरी कब्र खोदो, उसके अंदर तुम्हारी कोई चीज है। मैं उनकी बात पर हैरान हुई। वो बार बार एक ही जुमला बोलना शुरू कर देते हैं, जैसे कह रहे हैं कि जाओ जाकर ये काम करो, जल्दी जल्दी करो। फिर अचानक से मेरी आंख खुल गई। मैं हैरान थी कि ये किस किस्म का ख्वाब था। आजकल वैसे भी मैं उनको बहुत ज्यादा याद कर रही थी। वो बहुत अच्छे इंसान थे। मुझे आज भी याद है जब कभी बचपन में मेरी और नरमीन की लड़ाई हो जाती थी तो वो हमेशा मेरा साथ देते थे।
एक दफा तो मैंने खालू को ये कहते हुए भी सुना कि अपनी बेटी गैरों की तरह पाल रहे हैं और गैरों की बेटी को अपनों की तरह पाल रहे हैं। ये मेरे खालू ने बात कही थी। उन्होंने कहा, नरमीन तो मेरी अपनी बेटी है, मैं उसका बाप हूँ, तुम उसकी माँ हो, लेकिन अनम हमारी बेटी नहीं है। उसके माँ बाप भी इस दुनिया से जा चुके हैं। अगर हम उसका साथ नहीं देंगे, उसे नॉर्मल महसूस नहीं करवाएंगे, तो उसकी शख्सियत पर बुरा असर पड़ेगा, उसकी शख्सियत में खला पैदा हो जाएगा। इसलिए हमें उसे ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। मेरे चाचू ने तो मेरा ख्याल करना छोड़ दिया था। मंगनी पर जो जोड़ा उन्होंने मेरे लिए पसंद किया था वो इतना बुरा था कि मैं बिल्कुल भी ना पहनती, मगर फिर भी मैंने चुपचाप पहन लिया। हसनैन मेरे लिए हसरत बन गया था, जो मेरे दिल में ही कैद होकर रह गया था। अब मुझे सिर्फ नमाज पढ़कर अल्लाह के करीब ही सुकून मिलता था। लेकिन एक दिन मैंने अपनी खाला को फोन पर बात करते हुए सुन लिया। वो काफी परेशान थी, मेरे चाचू से बात कर रही थी। पता नहीं वो आपस में क्या बातें कर रहे थे, लेकिन कोई न कोई मसला जरूर था, मगर खाला मुझसे हर बात छुपा लेती थी। आज रात को फिर मुझे खालू ख्वाब में आए, फिर से वही बात कह रहे थे कि मेरी कब्र खुदवाओ, उसके अंदर तुम्हारी एक चीज है और उसके बाद सब ठीक हो जाएगा, परेशान नहीं होना। इस दफा उन्होंने ये बात भी कही थी कि परेशान नहीं होना। जब इंसान को 2 दफा एक ही ख्वाब आए तो वो परेशान हो ही जाता है। मुझे लगता था उन पर कोई बोझ है, इसलिए मैं नमाज के बाद उनके लिए कुछ न कुछ पढ़ती रहती थी। फिर भी वो मेरे ख्वाब में आ रहे थे। मैंने एक दिन ये बात अपनी खाला से कर दी, उनको ये भी बता दिया कि वो ख्वाब में आकर क्या कहते हैं। वो हैरान रह गई, उनकी शक्ल अजीब सी बन गई थी, उनका रंग फक हो गया था। उन्होंने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, इसलिए तुम्हें इस तरह के ख्वाब आ रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी खाला को कोई परवाह नहीं थी। आजकल मेरी तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब रहने लगी थी। मेरे सर में मुसलसल दर्द रहता था। जब मैं नमाज पढ़ती तो दर्द खत्म हो जाता, तस्बीह वगैरह पढ़ती रहती तो ठीक रहती, कोई दवाई मुझ पर असर नहीं करती थी। एक दफा तो मैं सीढ़ियों से बुरी तरह गिरने लगी थी। अगर मैंने अपने आप को संभाला नहीं होता तो मैं बहुत ही बुरी तरह गिरती। अगले रोज मेरे चाचू आए तो मेरी चाची किसी बात पर उनसे बहुत बहस कर रही थी। जब मैंने उनकी बातें सुनी तो वो अपनी नरमीन के नाम अच्छी खासी जमीन लिखने का कह रही थी और मेरे चाचू उनकी हाँ में हाँ मिला रहे थे। मैं हैरान होती कि मेरे चाचू मेरी खाला की हर बात कैसे मान जाते हैं। पहले तो कभी ऐसे नहीं हुआ था। अचानक नरमीन ने मुझे उनकी बातें सुनते हुए देख लिया। उसने कहा, तुम बातें सुन रही हो? मैंने कहा, नहीं, मैं तो यहाँ से गुजर रही थी, बस चाचू को देखकर रुक गई थी। नरमीन ने मुझे डांट कर अपने कमरे में भेज दिया। जब से नरमीन की मंगनी हुई थी उसका रवैया भी बदल गया था। वो मुझे हर वक्त नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। मेरे चाचू उस दिन मुझसे मिलने बगैर ही चले गए थे। आज रात फिर मुझे वही ख्वाब आया था। मुझे शक पड़ गया था, कोई न कोई गड़बड़ जरूर है। मैं एक मुफ्ती साहब के पास गई, उनको जाकर सारा मसला बताया। उन्होंने कहा, बेटा, इस तरह जब बार बार कोई ख्वाब में आता है तो कोई न कोई बात जरूर होती है। जो इस दुनिया से चला जाए इस तरह अपनी ख्वाहिश जाहिर करे तो इसके बारे में सोचना चाहिए। मैंने कहा, मैंने अपनी खाला को बताया है, लेकिन वो जवाब नहीं देती हैं। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे खालू को अच्छी तरह जानता था, अगर तुम्हें तसल्ली नहीं हो रही तो फिर मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। हम ये काम करवा लेंगे, 2-4 लोगों को साथ ले जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं, हमारा इरादा कोई गलत तो नहीं है। मैंने कहा, मुझे एक नहीं न जाने कितने ख्वाब आ चुके हैं। उसने कहा, फिर तसल्ली कर लेनी चाहिए। जब मेरी खाला को इन सारी बातों पर यकीन ही नहीं था, उनको कोई सरोकार भी नहीं था कि क्या करना है और क्या नहीं, तो मैंने सोचा कि मैं उनको नहीं बताऊंगी। जब से मेरे खालू इस दुनिया से गए थे मेरी खाला का रवैया बहुत अजीब हो गया था। अब वो मुझसे प्यार से बात भी नहीं करती थी, मेरे साथ बदतमीजी भी किया करती थी। खालू का भी किसी तरह का कोई लिहाज नहीं रखा था। वो तो ऐसे रो रही थी जैसे उनकी बेटी की नहीं बल्कि उनकी शादी होने वाली हो। खाला शौक रंगों के कपड़े पहनती हैं। घर में किसी बात का एहतराम नहीं किया जाता था कि अभी इस घर के सरबराह को गए 2-3 महीने भी नहीं हुए थे। मैं मौलवी साहब के साथ कब्रिस्तान में चली गई, कब्र खुदवाना शुरू कर दी। मुझे बार बार खालू के अल्फाज याद आ रहे थे कि कब्र को खुदवा दो, उसके अंदर तुम्हारी एक चीज है, उसके बाद तुम्हारी जिंदगी में सब ठीक हो जाएगा।
अचानक वो चीज हमारी आंखों के सामने आ गई। ये काले रंग का शापर था जिसका इस कब्र में कोई भी काम नहीं था। जब हमने वहां से वो शापर निकाल लिया तो हम लोग काफी हैरान हो गए। कब्र को फिर से उसी तरह बंद करवा दिया गया। जब शापर को एक साइड पर जाकर खोला तो मैं मजीद हैरान रह गई। मौलवी साहब ने फौरन अल्लाह ताला का कलाम पढ़ना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, मुझे लग रहा था कि इस तरह का कोई मामला है, लेकिन मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। इस शापर के अंदर मेरे इस्तेमाल किए गए कपड़े थे और 2 पुतले थे, एक मेरा और एक मेरे चाचू का। इसके अलावा इसमें और भी अजीब किस्म की चीजें थीं जिनका ताल्लुक किस चीज से हो सकता है। साफ पता चल रहा था कि किसने मुझ पर और मेरे चाचू पर जादू करवाया था। हम वापिस आ गए। मौलवी साहब ने कहा, पूरी बात बताओ। मैंने उन्हें सब कुछ बताया कि घर में किस तरह की हरकतें हो रही हैं, छोटी से लेकर बड़ी बात तक सब बता दी। उन्होंने कहा, तुम्हारी खाला ने तुम पर अमल करवाया है। मैं कलाम पाक के जरिए इसको खत्म करवा दूंगा, लेकिन किस मकसद से करवाया है ये तुम ही जानती होगी। हमने वो चीजें बाहर निकाल दी, इसका मतलब अब वो अमल खत्म हो जाएगा। मैं अपनी चाची के घर चली गई, उन्हें सब बता दिया। मौलवी साहब से बात भी करवाई। उन्होंने अपना सर पकड़ लिया। मुझे कहा, हमें भी ऐसा लगता है कि कोई न कोई गड़बड़ है, क्योंकि हमने तुम्हारे खालू से तुम्हारे रिश्ते की बात की थी, मगर तुम्हारी खाला ने उनसे झगड़ा शुरू कर दिया और फिर तुम्हारे खालू ने कहा कि तुम ये रिश्ता नहीं करना चाहती हो और किसी लड़के को पसंद करती हो। मैंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझसे तो ये बात ही नहीं की गई थी, खालू ने भी नहीं की थी और वो इस दुनिया से चले गए। उसके बाद शायद खाला ने झूठ बोला होगा, क्योंकि वो अपनी बेटी की शादी आपके बेटे से करवाना चाहती थी। मेरे चाचू का कहना था कि वो सिर्फ शादी नहीं करवाना चाहती थी, बल्कि वो कहती हैं, ये घर मेरी बेटी के नाम कर दो और जायदाद का 50% हिस्सा भी मेरी बेटी के नाम कर दो। लेकिन सच तो ये है कि मैं ये सब ना चाहते हुए भी उनकी हर बात मान रहा हूँ। कोई अनजानी ताकत थी जो मुझसे ये सब कुछ करवा रही थी, मगर अब मुझे लगता है मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। मैंने अपने चाचू से कहा, आप लोग मुझसे नाराज क्यों थे? उन्होंने कहा, तुम्हारी खाला ने हमें बताया कि तुम हसनैन और हमारे बारे में बुरी बुरी बातें करती हो, इसलिए हमें गुस्सा आ गया था। मैंने उन्हें ख्वाब और कब्र वाली सारी बात बता दी और कहा, ऐसा नहीं है, मैं तो हसनैन को पसंद करती थी। वो लोग भी हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि हमारी बेटी तुम हो, हमारा रिश्ता तो तुम्हारे साथ है, हम भला क्यों उसकी बेटी के साथ रिश्ता करते? हमें तो कहा गया था कि तुम ये शादी नहीं करना चाहती, इसलिए हम ये सब कर रहे थे, लेकिन अब हम इस मंगनी को खत्म कर देंगे। तुम्हारी शादी हसनैन के साथ होगी, हम अपने खून को अपने घर में लेकर आएंगे। वैसे भी ये सब कुछ तुम्हारा ही है। मेरे चाचू ने फोन किया और मंगनी खत्म कर दी। उसके बाद मैं उस घर में वापस नहीं गई। मेरी खाला का मुझे फोन आया। उन्होंने मुझसे ऐसे बात की जैसे मैं उनकी बहन की बेटी नहीं बल्कि कोई दुश्मन हूँ। मेरी आंखों में आंसू आ गए, पर उन्होंने भी तो मेरे साथ बहुत बुरा किया था। नरमीन ने भी मुझे बहुत बुरी बुरी बातें सुनाना शुरू कर दी। दोनों माँ बेटी के रूप खुलकर सामने आ गए थे। मैं तो हैरान थी, उनके दिल में मेरे लिए इतनी ज्यादा नफरत थी। मुझे तो लगता था मेरे खालू को भी उन्हीं ने अमल करके मरवाया होगा, क्योंकि खालू हमेशा से मेरी साइड लेते थे। मेरे चाचू ने कहा, हम ज्यादा देर नहीं करेंगे। उन्होंने फौरन निकाह की रस्म करवाई और साथ ही मैं उस घर में रहने लगी। आज हसनैन मेरा शोहर है। आज मुझे मेरी मोहब्बत मिल गई है और मेरा घर भी, जहाँ मेरा बचपन गुजरा था। मैं अपनी खाला पर हैरान हूँ कि खाला तो माँ जैसी होती हैं। उन्होंने मेरे साथ इतना बुरा किया। उन्होंने नरमीन की शादी एक अमीर खानदान में कर दी थी। खुदा की करनी ऐसी हुई कि मेरे 2 बेटे हो गए और नरमीन बे औलाद ही है। उसके शोहर ने दूसरी शादी कर ली है और पिछले दिनों मेरी खाला पर फालिज का अटैक हुआ था। वो अस्पताल में लावारसों की तरह पड़ी हैं। जिस बेटी के लिए वो ये सब कुछ कर रही थी, उस बेटी ने भी आज उन्हें तन्हा छोड़ दिया है। बस वो अपनी आखिरी सांसें पूरी कर रही हैं और मैं अपने घर में अपने शोहर के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही हूँ।